آج جامعہ منہاج العلوم بن شنکری میں مدرسے دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، یہاں پہ صرف تعلیم ہی تعلیم ہے۔ 11th اینڈ 12th پڑھا کے پھر NIOS کا وہ 12th اسٹینڈرڈ کا ایگزام دیں گے اور ملک کی خدمت کے لیے ہم ان کو تیار کریں۔ ہمارے عبدالقدیر صاحب جیسے شخصیتوں کو پکڑ کر ان بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم پورا فری رہے گی، اس میں کوئی وہ ایگزام دیں گے اور جب وہ 10th پاس کریں گے انشاءاللہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو جس کا قدم ثابت ہے۔ بچے ہمارے نشہ خور ہو گئے، ڈرگس لے رہے ہیں، ایسے بچے آئے ہمارے ادارہ میں، ہمارے یہاں پہ کنڑا، انگلش، ہندی جو بچے حافظ ہوں گے تو ادھر SLC پاس بھی ہوں گے۔ 10th اسٹینڈرڈ کا ایگزام NIOS میں جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ ہے اس کے کہیں دونوں تعلیم طلباء پر بوجھ تو نہیں بن جائے گی کہ ہمارے سر جڑ رہے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے، آج جو بچے جو شارپ ہوئے ہیں، جو چالاک ہیں، کالج کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر، اسکول کے اندر بھی دیکھیں گے کہ وہاں انشاءاللہ دونوں تعلیم دیں گے، اور انہوں نے کوشش کی ہے اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا بہت فعال، متحرک اور مسجد بلال کے خطیب و امام، اور جو اس یہاں انہوں نے مکمل کام کیا ہے ہمارے صدر الحاج ڈاکٹر نیاز پاشا صاحب کی معیت میں، اور کونسلر صاحب الحاج انصر پاشا صاحب کی رفاقت میں وہاں جا کر دعا کریں گے، زمین سے آسمان تک پہنچائے گا اور قبول بھی فرمائیں گا۔ میں مولانا شاہد اللہ صاحب جن کی شہادت میں مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس انصر پاشا صاحب سے، یہاں کے فاؤنڈر جناب الحاج نیاز پاشا صاحب، عبدالرشید صاحب، سید عبدالرشید صاحب کہ مولانا کے ساتھ کوشش کریں، سب لوگ ہاتھ لگائیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے، آ جائیے۔ علماء کرام کے ساتھ کوشش کریں، اللہ سب لوگ بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ دکھ رہی ہے یہ سب کی سب کیسی ہے، سیرائیں ہیں، سب سیرا ہے، سب کیسی ہے سیرا، اس سے بلڈ لوٹ رہا ہے، اگر لوٹتے بلڈ میں آکسیجن نہیں بلکہ CO2 ہوتا ہے، تو اس کو بلڈ لوٹ رہا ہے، کتنے کی اسپیڈ میں لوٹتا ہے، کتنے کی اسپیڈ میں لوٹتا ہے، تو 80 کی اسپیڈ میں لوٹتا ہے۔ بلڈ کے پھنسنے کی سمبھاونا، ایک بار کوشچن پوچھا تھا کہ کس پرکار کے ویسل میں بلڈ بلاکیج کی سمسیا آتی ہے، مطلب بلڈ گیا اور راستے میں رک گیا، کس میں بلڈ کی بلاکیج کی سمسیا سے، یہ کوشچن پوچھا، کوئی بھی چیز کب پہنچ جاتا ہے، گاڑی کب پہنچ جاتا ہے۔ في الأمور كلها جعل الحزن سهلا إذا شئت يا حي يا قيوم برحمته اهدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ جامعہ منہاج العلوم میں دینی و عصری تعلیم کا انتظام برائے طلبہ اور طالبات، پہلی غرض، پہلا مقصد حفظ قرآن ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور اس کے بعد عربی بول چال کے ذریعے ختم قرآن، فہم قرآن، ترجمہ آیات، رکوعات اور الفاظ قرآنی، سیرت النبی، سیرت صحابہ و صحابیات، تعمیر، تربیت، تہذیب اور آداب زندگی، تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا ماحول، گھر داری، رشتہ داری اور معاشرتی سلیقے، تربیت یافتہ مشفق تجربہ کار اساتذہ کرام کی یہاں تیاری، موسم کی سہولیات، پیار اور نفسیات کا طریقہ تعلیم، آج اس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پڑھنے والے طلباء اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کر کے باصلاحیت، با استعداد
बन कर वो यहाँ से जाएंगे। उन्होंने मुल्क के लिए APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंसदान को, सदर को दिया है। आज भी वो अपने अंदर ये सलाहियत, ये इस्तेदाद रखते हैं कलाम जैसे तलबा को पैदा करें। इस मुल्क ने बड़े बड़े माहिरीन को, बिलखुसूस कौम और मिल्लत ने बड़े बड़े आज लोगों को शक है कि मदारिस में दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं, मदारिस में गद्दार वतन को पैदा किया जाता है। दुनिया खुसूस तालीम ये बताती है कि इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए जितना उलमाए किराम ने मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, किसी और कौम के मिल्लत के लोगों में पसीना नहीं बहा। तो भाई अपने वालिद के नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं, सैयद अब्दुल जाहिर फाउंडेशन। उस फाउंडेशन से जो है कबीर साहब जो बहुत सारे काम करते हैं, चैरिटी का और एजुकेशन का, तालीमी तरबियती इदारा कायम करते हैं और अपने कमाई का हिस्सा लगाकर जो है ये तालीम के लिए बहुत सरगर्म है। दुआ फरमाए कि अल्लाह की भाई गुजारिश करते हैं, इच्छा भी है कि आपको भी कौम के काम में बहुत परेशानी होती है, लेकिन बड़े दिल के साथ माफ कर दीजिए और कहिए कि अल्लाह वो मेरे भाई जो मेरे शिकायत करते हैं या मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये आपके मजबूत होने की दलील है। जो लोग हादसा जिनके पास पेश होता है, इंसिडेंट पेश होता है और वो आदमी बहुत मजबूत हो जाता है इंशाअल्लाह। और जिनके साथ आसानियां हो, कहाँ मजबूत होता है, न उनके पास कोई प्लेटफार्म होता है, न उनके पास कोई मौक़िफ़ होता है और बस शिकायत ही शिकायत, हसद ही हसद। तो मैं कहूँगा डॉक्टर नियाज पाशा साहब से, कबीर साहब, सरकत पाशा साहब से, शेर अब्दुल रशीद साहब से, जितने वो आप गुजर जाइए कि तुमको जुल्म मुबारक हो, हमें वफाते हो। जो आपके साथ जो है, अगर कोई नाजेवा हरकत करे, आपको इम्तिहान लगाए, आप हो सकता है कि हमें हमारी भी कुछ कमी है। इंशाअल्लाह हमारे दुश्मन अगर इल्जाम लगाते हैं तो सबसे पहले हम अपने नफ्स को देखेंगे, हमसे भी कुछ गलतियां हो गई होगी, सुधारने की कोशिश करेंगे। जमात सिखाया जा रहा है, जैसे बातें हो गई है, अगर आपकी सुन रहे मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन हम एक ऐसी मिसाल करके दिखाएंगे कि हमारे मदरसे के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आसमान छूएगी। हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के कुछ बन सकते हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। अभी जो है अल्लाह ने वसीला बनाकर दोनों भाई को भेजा है, इन दोनों भाइयों के साथ इंशाअल्लाह हमारे इलाके के जितने भी है, हमारे सऊद के जितने भी है, इनका साथ देंगे, उनके कंधे से कंधा मिलाएंगे, उनका पसीना जिस जगह बहेगा हमारा खून बहाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा वादा है। अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि जो काम में हम अभी जिस काम को अंजाम देने जा रहे हैं वो तय तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश रहेगी यहाँ से IAS ऑफिसर बन के निकले, डॉक्टर बन के निकले, एडवोकेट बन के निकले, कुछ भी नहीं, अच्छे साइंटिस्ट बन के निकले, अब्दुल कलाम जैसा एक आदमी निकले इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनका भरपूर साथ दे और आप लोग का हमारा साथ रहेगा, आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस काम का अंजाम अच्छी तरीके से देंगे। अल्लाह का कलाम ही हिफ्ज़ होने वाला है और अल्लाह का कलाम ही हिफ्ज़ होता है। बस इतना ही मुझे जहां तक मालूम है मैंने बता दिया है। अगर इसमें कोई भूल चूक हो तो माफ करें, मैं अपनी जगह लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर टाइम में बड़ी कीमती बात आपने बताई, लेकिन आपके बाद से मेरा भी एक सवाल पैदा हुआ है सदर मोहतरम कि जहां अपनी तालीमी एतबार से लोग IPS बने, IAS बने, अफसर बने, पुलिस बने और ACP DCP सर्कल बने, आज के माहौल के अंदर दुनियादारी की बात बता दूं मैं, आज के अंदर इल्म होना जरूरी है, इल्म होना बहुत जरूरी है। आज सऊद के अंदर यहां से शुरू करें, उससे आगे कहां शुरू किए वो भीतर हमका मालूम नहीं है,
के अंदर जानकारी में है, इलम में है। दारुल फजा से साउथ के अंदर दारुल फजा है जो जिम्मेदार कमेटी वाले होंगे, जो कलेक्शन पूरे जितने भी कमेटी में ही उनको भी अस्सलाम है। अब इसके अंदर खत्म में खत्म सब मिल को, हमें सब मिल को, पूरी आवाम मिल को, आसपास के मोहल्ले वाले मिल को, चाहे ईदगाह हो चाहे दारुल फजा हो, हर चीज होता है अंदर खत्म में खत्म। ये जगह जंगल थी, मंगल बने, और इसके अंदर जंगल के अंदर आलिमा बने, मुखिया है, आलिमा है, हर चीज है। इसके अंदर पूरी कमेटी के साथ हमारे सदर साहब उनको सेहत दी, तंदुरुस्ती, हर चीज अल्लाह ताला उनको सेहत दिया। तो इंशाअल्लाह हम सब लोग आसपास के जितने भी मोहल्ले वाले हैं उनको सब मिलकर हमारे सब मिलकर उनको सदर साहब को साथ दिए। आज मदारिस के तर्ज तालीम को भी हमें बदलने की ज़रूरत है। आज के हालात और तकाज़ों को सामने रखते हुए तर्ज तालीम को भी बदलना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर साउथ के बिलखुसूस बनशंकरी के इस इलाक़े में जनाब अंसर पाशा साहब और नयाज़ पाशा साहब की क़ियादत में हज़रत मौलाना मोहम्मद शमीम सालिक साहब दामत बरकातुहुम की रहबरी में बहुत सारे अच्छे इक़दामात हो रहे हैं। बहुत सारा यहाँ काम हो रहा है। यहाँ मस्जिद भी है, मदरसा भी है और दारुल क़ज़ा भी है, और इनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा ईदगाह भी जिसका तामीरी काम भी चल रहा है। ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है जहाँ ये लोग दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कौम मिल्लत के मुखय्यर अहबाब जैसे अब्दुल कबीर साहब हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं, इन रोशन ख़याल लोगों को साथ में लेकर कौम मिल्लत के लिए समाजी फलाही खिदमत भी ये अंजाम दे रहे हैं। तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को इनसे एक नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि हर इदारे में, हर मस्जिद में ऐसे ज़िम्मेदार अहबाब हों जो कौम मिल्लत के लिए भलाई के काम करें। हमारी नेक ख्वाहिशात इस इदारे के साथ हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार अहबाब के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा चलकर ये इदारा शहर बेंगलोर ही के अंदर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर एक मुमताज़ मकाम हासिल करेगा। छोटी सी स्कूल में भी माँ बाप बहुत पहले से जाते हैं, कोशिश करते हैं, क़र्ज़ मांग कर ही सही, कोशिश मेहनत करके लाखों रुपया स्कूलों में जमा करते हैं फ़ीस के तौर पर, एडमिशन के तौर पर। वहीं दूसरी जानिब मदारिस की तरफ उनको दावत दी जाती है और ऐलान किया जाता है, उन तक मैसेज पहुंचाया जाता है कि यहाँ मुफ्त तालीम दी जाएगी, बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत का भी यहाँ इंतज़ाम किया जाएगा और उनको किताब भी मुफ्त में दी जाएगी। इसकी वजह से लोगों के दिलों से इसकी अज़मत और अहमियत निकलती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि मदारिस और मदारिस के जो उलूम हैं उससे बढ़कर कोई इल्म नहीं है। लोगों के दिलों में अगर हम अज़मत पैदा करना चाहते हैं, इस तालीम की अहमियत को बढ़ाना चाहते हैं, उलमाए किराम के मकाम को हम और उनकी अज़मत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ज़रूरी है कि हम इस पर अमल करें। हर मदरसे के अंदर ऐसे तलबा जिनके वालिदैन उनकी फ़ीस का इंतज़ाम कर सकते हैं, फ़ीस देकर अगर पढ़ाएंगे, अपना माल, आपका ख़ुद का माल आपके बच्चे पर ख़र्च होगा तो इंशाअल्लाह उसकी सलाहियतें, उसकी इस्तेदाद कुछ और होगी और उसकी तालीम और तरबियत का कुछ और असर होगा। इसलिए आज ज़रूरी है कि माँ बाप भी अपना माल अपनी औलाद पर ख़र्च करके मदारिस में दीनी और असरी दोनों किस्म की तालीम पढ़ाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई हैसियत नहीं है, जिनकी इस्तिताअत नहीं है, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि इस इदारे के ज़िम्मेदार अहबाब ने भी इसके लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया है और ख़ास तौर से जो बच्चे आला नंबरात से कामयाबी हासिल कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने मुफ्त का इंतज़ाम भी किया है। और कौम के मुखय्यर अहबाब भी हैं। कौम के मुखय्यर अहबाब अगर आज अपने माल का सही इस्तेमाल करते हुए, गलत जगह गलत रस्मों में अपने माल को खर्च ना करते हुए, अपने माल का सही इस्तेमाल करते हुए कौम व मिल्लत के बच्चों पर अगर अपने माल को खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि आइंदा चलकर कौम व मिल्लत के ये बच्चे अच्छे साइंसदान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कौम के मुखय्यर अहबाब को भी
اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنے مال کو ایسے بچوں کی طرف، ایسے بچوں پر لگائیں جو بچے آئندہ چل کر قوم کا روشن مستقبل بن سکتے ہیں، ملک اور ملت کے حالات کو سنوار سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1 اگست یعنی 1 اگست اور محرم الحرام اسلامی نئے سال کی دوسری تاریخ ہے۔ آپ حضرات کے دعاؤں کے توفیل آج جامعہ منہاج علوم و دارالقضا، جہاں تقریباً 150 بچے زیور تعلیم سے مزین ہو رہے ہیں اور یہاں 3-4 شعبے حفظ ہیں اور شعبے علمیت پنجم تک تعلیم ہوتی ہے۔ آج ایک اچھی شروعات اور دنیاوی تعلیم کا آغاز ہوا، جس کا تمام بیڑا جناب سید عبدالکبیر صاحب عبدالظاہر فاؤنڈیشن کے جانب سے ہمارے انہی بچوں کو عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے مزین کرنے کے لیے ایک مثالی، معیاری اور انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آج بنگلور میں جامعہ منہاج العلوم اور دارالقضا کے وادی میں ایک اغیار سے ممتاز قدم ہے تو یہ بیزا نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہمارا وہی بچہ اگر حفظ مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن سے کبیر صاحب اور عبدالرشید صاحب اور یہاں کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ جناب الحاج ڈاکٹر نیاز پاشا صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا شاکر اللہ رشادی صاحب اور ہمارے پیچھے باوقار قابل احترام علماء کی جمع غفیر، ان تمام کی تائید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک عصری تعلیم کا چشمہ بہے گا جو دور دور تک مساجد کے درمیان یہ تعلیم پھیلے گی اور یہ بچے حافظ ہوں گے تو ادھر SLC پاس بھی ہوں گے، یہ بچے چہارم پنجم میں ہوں گے تو یہ بچے PUC پاس ہوں گے، اور یہ بچے جہاں امام، عالم، مؤذن ہوں گے وہیں انشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں انسپیکٹر، لیکچرر، ریڈر، پروفیسر، IPS IS بھی بنیں گے، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ جیسے کہ ہمارے کمیٹی والوں نے کہا کہ اگرچہ اس کاموں میں پریشانیاں ہوگی، لوگ ہمارے ہی قوم میں بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو ہمیں دامن گیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت فرمائے اور ہمیں ساتھ دیں تاکہ ہم اس تعلیم کو قوم کے اندر عام کر دیں، اور ان کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو ظلم مبارک ہو، ہمیں وفا پہ امید۔ جو ہمیں کام کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے میں دعا کروں گا کہ ہم کام کرنے والوں کو کام کا موقع دینا چاہیے، اور ہم جب تک کام کرتے رہیں گے اور ہمارے شانہ بسانہ ہمارے قوم کھڑی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ کام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتے ہیں، لیکن انسان انسانی تو ہوتا ہے۔ ان تمام چیز کو سدھارتے ہوئے انہیں ظلم مبارک ہو، ہمیں وفا پہ امید، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں، انشاءاللہ ہم لینڈ مارک پہ اور زمینی سطح پہ تعلیم میدان میں قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے اور اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور ہم تمام علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے مدارس عربیہ کے اندر بھی جو ہے دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، ہمارے عبدالکبیر صاحب جیسے شخصیتوں کو پکڑ کر ان بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم، میں تو کہتا ہوں کہ ہر وہ تعلیم جس انسان کو انسانیت کو فائدہ ہو وہ تمام دینی تعلیم ہے، دنیاوی اور دین کہہ کر بانٹنا نہیں چاہیے۔ ہر وہ تعلیم جس انسان کو انسانیت ملے، انسان کو فائدہ پہنچے، وہ دینی تعلیم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، کہ علم 2 قسم کے ہیں، ایک دین کا علم ہے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ایک دنیا کا علم ہے جس سے غیر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جیسے پتھر سے کیا بنانا ہے، لوہا سے کیا بنانا ہے، دھات سے کیا بنانا ہے، پتے سے کیسی دوائیں بنانی ہے۔ تو جتنے بھی علوم ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ تمام اللہ کا علم ہے۔ فرق یہ ہے کہ دین کے علم میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور دنیاوی علم میں اللہ کے چیزوں کی معرفت کا علم ہوتا ہے۔
जिसको हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कहते हैं। और ये अच्छी शुरुआत, अच्छा इकदाम जो मिनहाजुल उलूम, जामिया मिनहाजुल उलूम जो साउथ का मुमताज इरादा है, वहां से आगाज हुआ है। अगरचे हम बहुत सारे हालात के शिकार हो गए, हमारे बहुत सारे लोग हमारे भाई दामनगीर हो गए, हम उनको भी माफ करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं और इस इक़दाम को आगे बढ़ाएं। हम साथ मिलकर कदम ब कदम चलेंगे कौम के नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे नशाखोर हो गए, ड्रग्स ले रहे हैं, ऐसे बच्चे आए हमारे इदारा में, हमारे कॉलेज में, और दोनों तालीम से बहरावर होकर अपने जिंदगी को आरास्ता पैरास्ता करे, ये हमारी गुजारिश और इल्तिजा है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे दुनियाई तालीम देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको जो है हम ऑनलाइन दुनियाई तालीम देंगे इंशाअल्लाह, जिससे बच्चों को पढ़ा के 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम NIOS में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसमें वो एग्ज़ाम देंगे। और जब वो 10th पास करेंगे इंशाअल्लाह तो उनको 11th एंड 12th पढ़ा के फिर NIOS का वो 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देंगे। और जो 12th पास होंगे इंशाअल्लाह उनको ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई का भी इंतज़ाम यहाँ पे करेंगे। ये सब पढ़ाई ऑनलाइन होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन होगी तो इसको और दूसरे मदारिस में हम बिल्कुल ईजिली ले जा सकते हैं। ये पहला मदरसा है जहाँ पे हम ये इंशाल्लाह काम शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो मदरसे हमसे जुड़ेंगे वहाँ भी हम ऑनलाइन तालीम जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हम ये हमारा प्रोग्राम 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक ये है जो मदारिस में जो है हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि मदरसे के बच्चे मॉडर्न तालीम हासिल करें और एग्जाम करें, जैसा मैं आपको बताया। और दूसरा जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, किसी मजहब के भी हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी मजहब के हो, उन बच्चों को भी लेके हम तैयार करेंगे NIOS के 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए और 12th के लिए, और इंशाअल्लाह इग्नू के ग्रेजुएशन के लिए उसका इंतजाम करेंगे। एंड ये सबके लिए ओपन है, ड्रॉप आउट्स के लिए भी। मदरसे जो है दहशतगर्दी के अड्डे हैं। दहशतगर्दी मदरसों से निकलती है, ये बहुत लोगों ने कहा है, आपने भी सुना है, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो भरपूर पता होगा कि इसके बारे में, मदरसों के बारे में आजकल ना जाने किस किस अल्फाज से बात कर रहे हैं। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मदरसे जो है दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है। अब मैं इस प्लेटफॉर्म से हम सब उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तालीम ही तालीम है, इंसानियत है, अखलाकियत है। यहाँ पे दहशतगर्दी का कोई काम नहीं चलता है। यहाँ से मैं ये काम शुरू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस काम को सारे बेंगलुरु शहर के अंदर इंशाअल्लाह इस काम को हम अंजाम देंगे। हम सब मिलकर सबको ये बता देंगे कि मदरसे जो है अभी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दिया जा रहा है। यहाँ पे कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, जो भी दुनियावी तालीम है सभी का यहाँ आगाज होगा, सभी को यहाँ पे सबको तालीम दी जाएगी। दीनी तालीम के साथ इस तालीम को कंपलसरी किया जा रहा है या चॉइस पे रखा जा रहा है? इंशाअल्लाह दीनी तालीम के साथ चॉइस पे किया जाएगा। हाँ, और जो भी है देखिए, एक मदरसे के जो भी बच्चे फारिग होते हैं, या कोई हाफिज बनता है, या कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, उनकी जिंदगी वहीं पे थम जाती है। कोई मौज़न बन जाता है, कोई इमाम बन जाता है, ऐसा हो जाता है। अभी इसके साथ साथ हम दुनियावी तालीम भी देंगे तो वो कुछ भी बन सकता है, IAS बन सकता है, APS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट सर्वेंट तो बन ही सकता है। इंशाअल्लाह यहाँ पे जो है वो तालीम दी जाएगी। इंशाअल्लाह यहाँ से जो बुलंदी की आवाज उठी है, ये बुलंदी की आवाज बहुत दूर दूर तक गूंजेगी, इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाएगी। इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट आप सभी को और पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। पूरा फ्री रहेगी, उसमें कोई
जो वो आते हैं उनका बस का खर्चा ही बस देना पड़ता है। यहाँ पे उनको खाना भी फ्री मिलेगा, इंशाल्लाह तालीम भी फ्री मिलेगी, यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप भी फ्री मिलेगी इंशाल्लाह। कि कहीं दोनों तालीम तलबा पर बोझ तो नहीं बन जाएगी? इसका आसान जवाब ये है, जो टेक्नोलॉजी है, आज जो बच्चे जो शार्प हुए हैं, जो चालाक हैं, और मदरसे में 24 घंटे का निज़ाम रहता है, अगर सही दोनों तालीम की तत्बीक दी जाए, जैसा कि सैयद अब्दुल कबीर साहब फरमा रहे हैं, दोनों को लेकर चलने का एक निज़ाम बनाया जा रहा है, ऑनलाइन तालीम की तरतीब बनाई जा रही है, तो दारुल इकामा और हॉस्टल रेसिडेंशियल इदारा होने की वजह से तलबा पर उतना बोझ नहीं होगा जितना हम समझते हैं। और मैं समझता हूँ दीनी तालीम, असरी तालीम, इस तक़सीम को मिटा देकर कोई एक नई इस्तिलाह हो, तालीम तालीम ही रहे। और मेरी एक सोच है, मैं समझता हूँ कि दीनी तालीम इबादत है, असरी तालीम ज़रूरत है। आज हम जहाँ होते हैं वहाँ की मकामी ज़बान पर बात करते हैं तो हमारे आधे मसले ऐसे ही हल हो जाते हैं। ज़बान न समझने की वजह से मसाइल बिगड़ते हैं, मुश्किलात मज़ीद पैदा होती हैं। और मैं कहता हूँ जो झाड़ बड़ा होता है उसे हवा ज़्यादा लगती है। काम करने के लिए हौसला भी होना चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए, सबसे बढ़कर तौफीक चाहिए। एक अल्लाह वाले मजमा से कहते हैं, एक वाइट बोर्ड रखा गया, एक पेन से, एक कलम से, मार्कर से एक नुक्ता डाल दिया गया, तो मजमा से पूछते हैं वो अल्लाह वाले सामने क्या है? वो कहते हैं कि एक सियाह नुक्ता है, एक धब्बा है। अल्लाह वाले कहते हैं क्या तुम्हें ये वाइट बोर्ड नजर नहीं आया? तो बात ये होती है, सारी खूबियां रहती है, कहीं कुछ चूक हो जाए, कहीं कुछ खता हो जाए तो फिर उसको हम उछालते हैं। इस मिजाज को बदलने की ज़रूरत है। काम करने वाले तो ला यखाफून लौमत लाइम, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं, कोई परवाह नहीं होती। ये नबियों का तरीक़ा है, सहाबा का तरीक़ा है, अल्लाह वालों का शवा है। इस मिजाज को लेकर मिनहाजुल उलूम खड़ा हुआ है। मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम की क़ियादत में और नियाज़ साहब की रहबरी में और उनके रुफ़क़ा की इमदाद के साथ, ताउन के साथ मिनहाजुल उलूम दारुल क़ज़ा ये शहर बेंगलोर के लिए एक अहम फरीज़ा अंजाम दे रहा है। अब मज़ीद इस शोबे का इजाफा हो रहा है कि तलबा कहीं मुहताज न हो, किसी भी शोबे में परेशान न हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ लगता है कि मिनहाजुल उलूम दारुल क़ज़ा की जानिब से इमाम मस्जिद को इमाम कौम बनाने की तहरीक चलाई जा रही है, कोशिश शुरू की गई है। रब करीम अपने कलाम पाक के ज़रिए लोगों को ये बताते हैं कि अल्लाह ताला की मदद उसी के साथ होती है जो जिसका कदम साबित हो, साबित कदमी से जो आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला की मदद उसी के साथ होती है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे जामिया मिनहाजुल उलूम के प्रेसिडेंट फाउंडर जनाब नयाज साहब हो और हमारे जनरल सेक्रेटरी जामिया मिनहाजुल उलूम के डॉक्टर शमीम सालिक साहब हो या यहाँ के हर तमाम अंसर साहब हो, जितने भी हमारे रुफ़क़ा हैं और हमारे डॉक्टर नदीम साहब हो और अनवर साहब हो और शरीफ साहब हो, ये तमाम मिलकर जहां भी हम कदम बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे कदम को और मजबूत कर रहे हैं, और मजबूत कर रहे हैं, और लोग भी हमारा ताउन कर रहे हैं। और अल्लाह का करम है, एहसान है हमारे साथ। जिस तरह हमारे बार बार तकरीर में हमारे डॉक्टर नयाज साहब ने, सदर साहब ने फरमा रहे थे कि हमारे सर जुड़ रहे हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज नए सर और नए उमंग और नए फिक्रों के साथ हमारे साथ दो भाई जनाब कबीर साहब हैं और अब्दुल रशीद साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कौम और मिल्लत की फिक्रें लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा भरपूर ताउन करने का उन्होंने
इरादा मुसम्मम इरादा किया है और हमारा कदम से कदम मिला रहे हैं। अल्लाह उनके ताउन को, उनकी कोशिशों को, उनकी काविशों को कामयाबी तक पहुंचाए और हमारे इस कौम और मिल्लत की जो फिक्रें लेकर चल रहे हैं हमारी भरपूर ताउन करें और हम तमाम मिलकर इंशाअल्लाह कौम और मिल्लत की भरपूर कोशिश करेंगे। कामयाबी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए हर वो काम करते रहेंगे जिसमें कौम और मिल्लत का फायदा हो। इंशाअल्लाह यही हमारी दुआ है।